Hi everyone. Now I'm going to take the third lecture of probability. In first two lecture what I covered the basic of the probability and the probability based on permutation. In last lecture I taught how to use permutation while solving the question based on probability. Now in this lecture I'm going to take the questions based on combination, and that is how to use that combination in probability. Now let's start with the concept. Now, how to know that whether the question is based on combination or permutation? So the simple synonyms for combination is selection. So whenever question is demanding selection, it means that question is asking for using the combination. So like I have, acha, now what is mean by combination? Say I have four students in my class A, B, C, D. Okay? To shift the benches from one place to another place, I'm calling any two student. So it doesn't matter who came first, who came second. AB or BA both are equivalent to me. Okay. So AB I can call AC, I can call AD, then I can call BC, then I can call BD, then I can call BD, then I can call CD, I can call CD. ये छह में से कोई भी एक पेयर आ जाए बच्चों का तो मेरा काम आसान हो जाएगा. इसी चीज को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि देर आर फोर स्टूडेंट एंड एनी टू स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड. नाउ द फॉर्मूला फॉर NCR, this is the total number of object, N is the total objects total, and the R is the selected. Selected is given by n factorial upon r factorial n minus r factorial. That is nothing but npr upon r factorial, because the formula for npr is n factorial upon n minus r factorial. So I can solve like 4 factorial, then 2 factorial, then 2 factorial. 4 minus 2 is 2 factorial. 4 into 3 into 2 factorial. Then here 2 factorial, then that 2 factorial can be written as 2 into 1, cancel out, into 2 3 ja 6. So I got the answer for 4C2. तो जब कभी भी क्वेश्चन में सिलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन, ठीक है, अगर आपके पास अरेंजमेंट आ रहा है, अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम, अरेंजमेंट, तो आपको याद रखना है परम्यूटेशन. परम्यूटेशन, ठीक है. अब उसमें परम्यूटेशन में भी अलग अलग टाइप है कि ऑब्जेक्ट्स में रिपीटेशन है कि नॉन रिपीटेशन है, ठीक है. और जब कभी भी कॉम्बिनेशन आएगा इसका मतलब, या सिलेक्शन आएगा इसका मतलब आपका कॉम्बिनेशन है. अब एनसीआर मैं आपको एक बता दूं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसे आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं. NC0 NCN1 होता है, NC1 N होता है. ये प्रॉपर्टी है सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन. मतलब मैंने कहा कि 10 में से 4 बच्चे सिलेक्टेड हो, इसका मतलब 10 में से बचे हुए 6 रिजेक्टेड हैं, ठीक है. तो ये सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन वाली प्रॉपर्टी है. ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने कॉम्बिनेशन में पढ़ा दिया है, बट ऑल दोस प्रॉपर्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड. आप बस इतना पढ़ लोगे ना, ये चार प्रॉपर्टी एंड द फॉर्मूला, ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज होता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा. बाकी सब रेफरेंस के लिए याद कर सकते हो, ठीक है. सो देखो, चलो देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन का यूज होता है. तो नाउ द, पहले तो ये कार्ड्स के बारे में मैं बता दूं. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो सारे बच्चों को मालूम है. 1313 इसे सूट कहा जाता है, SUIT. 1313 के सूट्स होते हैं. फिर चार किंग क्वीन जैक को हम फेस, कुछ लोग फेस कहते हैं तो कुछ लोग पिक्चर कार्ड कहते हैं, पिक्चर कार्ड. देन एस इसी किंग क्वीन जैक के साथ डाल दो तो इसे हम कोर्ट कार्ड कहते हैं, कोर्ट कार्ड. और एस किंग क्वीन के साथ डाल दो तो फिर इसे ऑनर्स कार्ड का नाम दिया जाता है, ऑनर्स कार्ड का नाम दिया जाता है. फिर ए फॉर एस कार्ड, एस कार्ड. और फिर यहाँ पे 2 से लेके 10 तक नंबर्ड कार्ड बोले जाते हैं, ठीक है. तो ये याद रखना है आपको. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग,
टू कार्ड्स आर ड्रॉन मतलब आपको 52 में से यू विल हैव टू सिलेक्ट एनी टू कार्ड. Out of 52, select any two card. So sample space will be you are selecting any two card 52 C2, and that simple method is 52 into 51. Move 52 two times back. I mean say 2 back divided by 2 factorial. I'm just solving like a NPR upon R factorial. So 2 factorial means 2. 26 into 51. 2 factorial means 2 into 1. That is what equal to 2. So I got sample space. Now I'm going to deal with the first problem. बोथ आर रेड कार्ड. अब रेड कार्ड तभी आएगा जब ये आप 13 और 13 यानी 26 के बंडल में हाथ डाल के दो कार्ड निकालेंगे. अगर आप यहाँ पे हाथ डालते हो तो आपको रेड कार्ड नहीं आएगा. तो रेड कार्ड तभी आएगा जब आप रेड टोटल रेड कार्ड में से कोई दो पत्ते निकालेंगे. So n of A is, how many red cards are there? 26. I'm selecting any two. So 26 into 25 divided by 2. That 13 into 25 is n of A. Hence the P of A is going to be, P of A is nothing but n of A divided by n of S. N of A divided by n of S. N of A is 13 into 25 by 26 into 51, cancelling out 2. So the answer is 25 by 102. 25 by 102. Then I am going to take the second one. Second problem क्या कहता है? Both are king. आपको दोनों के दोनों पत्ते king रखने हैं. So there are total 4 king card. Out of that I am selecting any two. So that is done by 4 into 3 by 2 factorial, and that is equal to 6. So therefore both are king is done by okay, it is done by 6 upon 26 into 51 ways. 2 3 ja, 2 13 ja, then 3 17 ja. So this is going to be 1 upon 221. Is that clear? One is face card, and another one is king of red. तो रेड के तो दो ही किंग है. तो इन दो में से एक पत्ता तो मुझे किंग का चाहिए. सॉरी, किंग तो यहाँ पर है. इन दो में से मुझे एक पत्ता तो किंग चाहिए. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, देखो एंड आ गया तो मैं समझ लिया कि मल्टीप्लाई लगना है. तो पहले मैं इन दो में से कोई भी एक किंग निकाल लेता ताकि मेरा रेड किंग का क्राइटेरिया पूरा हो जाए. बाकी बचे हुए, मान लो कि मैंने ये वाला पत्ता निकाल लिया, बरोबर. तो बचे हुए 11 में से मैं कोई भी एक पत्ता निकालू. किसी ने बोला सर वापस से किंग आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? ये किंग फेस कार्ड का काम कर रहा है और ये रेड किंग का काम कर रहा है. तो रेड और फेस कार्ड. लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी देके यहां से डायरेक्टली दो पत्ते निकालू तो मे बी ये और ये आ सकता है कि ब्लैक का किंग और ब्लैक का क्वीन आ गया, वो नहीं चलेगा. पहले मुझे एक ध्यान देना है कि रेड का किंग पहले मैं निकाल लूं. रेड का किंग. तो चलो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाऊं तो रेड का किंग थर्ड वन में अगर मैं सोचूं रेड का किंग कैसे निकालेंगे, तो दो पत्ते रेड के किंग के होते हैं. दो में से कोई भी एक पत्ता मैंने निकाल लिया. आई एम जस्ट सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम टू रेड किंग. अब बचे कितने पत्ते फेस कार्ड वाले? तो 11 पत्ते बच गए. कैसे 11 बचे? तो हमने एक किंग तो रेड का निकाल लिया और बचा हुआ एक किंग उसमें वापस पैक में डाल दिया. तो 11 टोटल 12 कार्ड्स होते हैं. एक कार्ड फेस कार्ड हमने निकाल लिया जो रेड किंग है, फेस कार्ड भी है. अब बचे हुए 11 में से कोई भी एक कार्ड निकाल लो तो आपका 2 into 11 equal to 22 आ जाएगा. Implies that probability of C is 22 by 26 into 51. कट करेंगे तो 2 11 जा एंड 2 13 जा, 13 into 51 आ जाएगा. देन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन कहता है उसे चाहिए, ओके, वन इज कोड कार्ड. एक कोड कार्ड मतलब कि ये 16 ए के क्यू जे मतलब ये एस के 4 और ये 12. एक कोड कार्ड चाहिए और एक एस कार्ड. तो पहले देखो एस कोड कार्ड होता है. तो पहले काम करते हैं, उसे एक काम करते हैं, पहले एस कार्ड दे देते हैं.
पहले उसे एस कार्ड दे देते हैं कि भाई 4 एस कार्ड होते हैं, उसमें से एक पत्ता तू ले ले। बचे हुए, अब मेरे पास टोटल कितने पत्ते ऐसे हैं जो कोर्ट कार्ड होंगे? तो 16 तो टोटल होते हैं, बट एक कार्ड तो आपने निकाल लिया, तो 15 पत्ते अब बच गए, जिसमें से 3 एस है। अब कोई एक कार्ड निकाल लो। अब कोई बच्चा बोलेगा तो सर दूसरा भी अगर एस आ जाए तो एस। अब यहाँ पर एस जो सिलेक्ट हो रहा है वो एस की तरह हो रहा है, बट यहाँ पे एस जो सिलेक्ट हो रहा है वो कोड कार्ड के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पे ये एस कार्ड का नाम है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे वही एस कोर्ट कार्ड में काउंट हो गया, कोर्ट कार्ड में। और मान लो एस नहीं आता, किंग आ जाता है, तो भी कोर्ट कार्ड बोला जाएगा। दैट इज व्हाट 4 इंटू 15 इक्वल टू 60, एंड देन आई विल कैलकुलेट द पी ऑफ डी। दैट इज व्हाट 60 अपॉन 26 into 51. Now do the calculation. अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। What is the question number 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहता बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट, मतलब या तो दोनों पत्ते यहां से हो, या तो दोनों पत्ते यहां से हो, या तो दोनों पत्ते यहां से हो, या तो दोनों पत्ते यहां से हो। तो और करके हम केसेस बना लेते हैं। एन ऑफ ई, तो हमने बना लिया कि 13 में से कोई भी दो पत्ता यहां से निकाल लिया पहले सूट में से, या फिर 13 में से दो पत्ता दूसरे सूट में से निकाल लिया, और 13 में से दो पत्ता तीसरे सूट से निकाल लिया, और 13 में से दो पत्ता चौथे सूट से निकाल लिया। तो इट्स अ 4 इंटू 13 C2, 13 इंटू 12/2 फैक्टोरियल। तो ये इससे कटा तो ये आ जाएगा 2, तो 24 इंटू 13 आ जाएगा। देयर फोर पी ऑफ ई जो आ जाएगा, पी ऑफ ई 24 इंटू 13 इवेंट हो गया, एंड 26 इंटू 51 सैंपल स्पेस हो गया। नंबर 6 पे अब हम आते हैं। नंबर 6 क्या कहता है? नंबर 6 कहता है बोथ आर ऑफ द डिफरेंट सूट। तो किसी एक सूट से एक पत्ता निकाल लो, और बचा हुआ किसी एक सूट से एक पत्ता निकाल लो। आप कह दो कि मैंने यहां से एक पत्ता निकाल लिया और यहां से एक पत्ता निकाल लिया, तो आप सूट कोई भी एक सूट पकड़ लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, एन ऑफ एफ, मैंने एक सूट लिया, उसमें से एक पत्ता निकाला, एंड अब यहाँ पे सूट स्पेसिफिक नहीं है कि ये ही सूट में से निकालो। 13C1 और 13C1 हो गया। कोई भी एक सूट में से एक पत्ता निकाल लिया, एंड दूसरे सूट पे गया तो एक पत्ता निकाल लिया, 13C1। तो दैट विल गिव यू व्हाट, 13 इंटू 13 169। so the therefore probability of f। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर आपने सूट क्यों नहीं लिया? क्या जरूरत है सूट सिलेक्ट करने का? उसने तो बोला डिफरेंट सूट। मैंने बोला ना, पहले 13 में से एक पत्ता निकाल लिया, दूसरे 13 में से एक। अब मैं क्यों स्पेसिफिक करूं कि मैंने एक सूट लिया उसमें से एक पत्ता निकाला, फिर दूसरा सूट लिया उसमें से एक पत्ता निकाला? तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, स्पेसिफिकली चला जाएगा। मैंने तो ले लिया एक सूट में से एक पत्ता एंड दूसरे सूट में से एक पत्ता, सीधी सीधी बात है। 169/26 इंटू 51। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए इसके कार्ड्स पे। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक था, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, ड्रॉन मतलब टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड। सीधी सी बात है, सिलेक्टेड मैंने देखा और मैंने कॉम्बिनेशन लगा दिया। इस तरह समझना होता है कि आप कॉम्बिनेशन कहाँ लगाओगे। अब अरेंज होता, भाई कार्ड का क्वेश्चन है तो सिलेक्ट ही होगा। अरेंज वाला तो अरेंजमेंट ज्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इसमें सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में आपका एनपीआर लगता है, बोलता है कि अ नेचुरल नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100, मतलब एक नंबर चूज किया है। तो सैंपल स्पेस तो बहुत सीधा सीधा है कि 100 में से कोई भी एक नंबर ले लो, एंड दैट इज व्हाट 100 वे से हम कर सकते हैं। इवन नंबर तो 1 से 100 के बीच में, फिर आधे इवन नंबर होते हैं, आधे ऑड नंबर होते हैं। आप कोई भी नंबर सीरीज देख लो, पहला नंबर अगर इवन है तो उसके बाद उसका कंसेक्यूटिव ऑड होगा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। ये 50/100 हो जाएगा, आधे इवन आधे ऑड। उस 50 में से एक पत्ता कोई भी ले लो, 50/100, तो दैट इज 1/2। फिर ऑड नंबर, वही ऑड नंबर वाली प्रोबेबिलिटी वही हो जाएगी कि आधे 50 इवन है, 50 ऑड है, उन 50 ऑड में से कोई एक पत्ता ले लो, ठीक है। अब प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर तुम्हें गिनना पड़ेगा। तो मैंने सोचा 2 4 6 8, क्या लिख रहा हूं मैं, इवन नंबर 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19। अच्छा, बहुत सारे टीचर इसके पीछे बहुत सारी थियरी बताते हैं कि भाई ये वाला थियरी। देखो, थियरी अपने आप में तो बहुत कारगर होती है, मैं ये नहीं कहता थियरी याद नहीं करना चाहिए, बट दिक्कत क्या होती है, एग्जाम टाइम पे वो याद नहीं आती है। ठीक है, तो बेटर है वो आप अपना यही तरीका अपनाओ, इसमें तो सब बच्चे लिख सकते हैं। अच्छा, कोई नंबर पे डाउट हो, जैसे 20 नहीं है, 21 किसी के टेबल में आता है, हाँ भाई 7 के टेबल में आता है, फिर नहीं है प्राइम। 22 नहीं है, 23, हाँ 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, 24, 25, 26, 27, 20, देखो 27 पे मेरा मन गया तो 9 के टेबल में आता है, 28, 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 37 हो गया, फिर 39 पे आया तो 13 के टेबल में आता है, फिर 41 हो गया, फिर 43 हो गया, फिर 47 हो गया, फिर 51, 51 नहीं, देखो 51 तो 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 3 के टेबल में 3 से डिविजिबल है। 53, 57, 59, 61, 63 नहीं होगा, 67, 69 नहीं होगा, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। देखो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नंबर आ गए। तो कोई नंबर ऐसा है कि आ गया, 1, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 41 भी नहीं आता, 43 भी नहीं आता, 47 भी नहीं आता है, 53, 57, 59, 61, 67, 71, 73, 73, 79 नहीं आता है, 83 ये भी नहीं आता है, 87 भी नहीं आता, 89, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। सो एक बार चेक कर लेना कि मे बी रॉन्ग राइट कौन सा, कोई नंबर तो ऐसा नहीं है जो नहीं आ पाया या एक्स्ट्रा आ गया। 29, 31, 41, 43। हाँ, मुझे लगता है सारे नंबर्स तो मैंने लिखे हैं। तो पी ऑफ सी इज व्हाट, 27/100। परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का एडिशन वो नंबर बनाता है, और 1 to 100 में दो ही नंबर है, 6 और 48। ये जो मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, तो परफेक्ट नंबर तो दो है, 2/100। फिर नंबर विच हैव ओनली थ्री फैक्टर वाले नंबर, अब तुम्हें ये लिख के करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बच्चा बोले उसका कोई शॉर्टकट है क्या, नहीं है। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो देखे हुए रहते हैं तो याद होता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने जब किसी क्लास में करवाया था तो बताया था कि ये ज्यादातर ना, जो स्क्वायर रूट जिनका निकल जाए, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर 1, 4, 9, 16, उसमें भी सारे नंबर नहीं, सिलेक्टेड नंबर्स हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। 100 तक की बात करें, 1 तो छोड़ ही दो। 4 के फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 4। ठीक है, 9 के फैक्टर्स आते हैं 1, 3, 9। 16 के तो ज्यादा हो जाते हैं, ये लिस्ट से गया। 1, 5, 25। 36 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 49 के 1, 7 और 49। 64, 81, 81 के तो ज्यादा हो जाएंगे ना, 1, 3, 9, 81 ऐसे हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो इसके चार ही नंबर आते, तो 4 बाई, इसे पी ऑफ डी, पी ऑफ एफ 4/100 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। मुझे लगता है आपको हर एक नंबर का चेक करना पड़ेगा।
जहाँ मुझे लगता है 5 के बाद, जैसे 1 ले लिया नहीं है, 2 ले लिया नहीं है, 3 ले लिया नहीं है, प्राइम नंबर तो वैसे भी हट जाएंगे, 4 ले लिया, 3 फैक्टर है, 5 का छोड़ दो, 6 का देखो, 1 2 3 6, तो ये है 6, तो ऐसे आपको काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर इसको एग्जाम में आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप देख के रखो, देख के रखो। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मेरे इतने 15 साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा लेंदी क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, बट लेकिन देख लो ना। और अगर अभी तो कोई एग्जाम लिख नहीं रहे हो, तो आप कोशिश करो कि जितने नंबर्स आप लिख सको और कुछ को रिलेट कर सको। अच्छा, मैं तो इसको जनरली लिख के ही सॉल्व करता हूँ, तो मुझे लिखने में काफी टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। पी ऑफ एफ, डी, ई, एफ। एफ तो आप सॉल्व कर लेना, आपको जो आएगा बाई नीचे 100 होगा, ऊपर आप देखो। एफ, पी ऑफ जी, परफेक्ट स्क्वायर 10 ही तो होते हैं, 149, वही 100 है ना, जहां तक स्क्वायर रूट निकल जाए, 10/100। जी, पी ऑफ एच, परफेक्ट क्यूब। क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 100 से ज्यादा हो गया तो 4 तक निकल जाएगा, तो इट्स अ 4/100। एच, पी ऑफ आई, फोर्थ पावर, 1 का फोर्थ पावर 1, 2 का फोर्थ पावर 16, 3 का फोर्थ पावर 81, 3/100। सिक्स पावर, 1 का सिक्स पावर 1, 2 का सिक्स पावर 32, 2 का सिक्स पावर 32, ठीक है, 32 हो गया। और 3 का सिक्स पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 2/100 आ जाएगा। मतलब वो दो नंबर अवेलेबल है, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो, बिकॉज अ नंबर बोला है। देखो ये सारे क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गए, कोई भी मैंने रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कभी अ नंबर, अ ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, अ ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, तो सीधा सीधा होता है कि अगर एन ऑब्जेक्ट है, अ ऑब्जेक्ट, तो एन सी वन, तो हम एन ही लिखते हैं। जैसे मुझे पता चला 50 इवन नंबर है, बट मुझे तो एक ही नंबर सिलेक्ट करना था, तो दैट इज व्हाट, 50 C1/100 C1। एक्चुअल सॉल्विंग ऐसे है 50 C1/100 C1, बट आप बच्चे तो नहीं हो कि 50 C1 का मतलब 50/100। हाँ, यहीं पे 2 होता तो फिर 50/100 नहीं होता, फिर प्रॉपरली मैं लिखता 50 C2/100 C2। गॉट इट। ये रहा कॉम्बिनेशन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, बहुत सारे ज्योमेट्री में मैंने समझाए हैं और बहुत सारे मैंने क्लास में करवाए हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप देख लो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है, इसे फटाफट पढ़ लो। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं न्यूमेरिकल में ले जाके इसे एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। वहां मैं सिखाता हूँ कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। ये देखो, कितने स्क्वायर्स बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे, ये सारी चीजें तो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कई बार लेक्चर में। अच्छा, जिनको न समझ में आया वो मेरा पीएनसी के लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि पीएनसी के लेक्चर्स में मैंने सारी चीजें उसमें डाल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In a convex hexagon, two diagonals are drawn at a random. Find the probability that diagonals intersect at the interior point of the hexagon. हेक्सागन के इंटीरियर, डायगोनल हेक्सागन के इंटीरियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हेक्सागन में टोटल कितने डायगोनल्स पॉसिबल है? तो हेक्सागन में टोटल, अगर आप देखोगे, वैसे तो वो ट्रिक आपको मालूम ही है कि अगर कोई भी पॉलीगॉन दिया है, तो चलो पहले इसे मैं बता दूं। एक डायगोनल यहाँ से, एक डायगोनल यहाँ से ऐसे चला जाएगा, फिर वो ट्रिक मैं बताता हूँ। एक डायगोनल यहाँ से ऐसे चला जाएगा, फिर एक डायगोनल यहाँ से ऐसे चला जाएगा, एक डायगोनल यहाँ से ऐसे चला जाएगा, और एक डायगोनल यहाँ से ऐसे जाएगा, एक डायगोनल यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डायगनल्स आ गए। वैसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, मेरे लिए तो ये बहुत छोटा सा टोटल, टोटल नंबर ऑफ डायगनल, जस्ट अ मिनट,
ओके, टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स, तो टोटल मेरे पास हेक्सागन है, तो उसको मैं ऐसे कहता हूं मेरे पास 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनेगी और वो पॉलीगॉन बनाएगा, उसमें से 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब 6 साइड्स बनने वाली है। तो बचे हुए 6c2, 6 × 5/2 फैक्टोरियल, 15 - 6, ये 9 डायगनल्स आ गए मेरे पास, ठीक है, 9 डायगनल्स आ गए। अब कहता है टू डायगनल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डायगनल्स इंटरसेक्ट एट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द हेक्सागन। तो कोई भी दो डायगनल को एक ही पॉइंट से नहीं लेना है, इंटीरियर मतलब आपका यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट होना चाहिए, इस तरह इंटरसेक्ट होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो चलो, तो देयरफॉर सैंपल स्पेस हो जाएगा कि 9 में से किसी भी दो डायगोनल को ले लो, दैट विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट विल इंटरसेक्ट, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स, कि डायगोनल अगर इंटरसेक्ट करे तो कितने पॉइंट पॉसिबल होंगे। 9 × 8/2 फैक्टोरियल, 36 पॉइंट्स पॉसिबल होंगे इंटरसेक्शन के, तो 36 में ये भी पॉइंट आ जाएगा, इधर वाले पॉइंट ये भी आ जाएगा ना, ये भी दो डायगोनल का इंटरसेक्शन बन गया। फिर एन ऑफ ए, अब क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डायगोनल इंटरसेक्ट एट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द हेक्सागन, ये डायगोनल हेक्सागन के इंटीरियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैंने क्या कहा कि एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स पहले सिलेक्ट करते हैं, ये वर्टेक्स सिलेक्ट किया और एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, ठीक है। ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मैंने उसके लिए लिया कि 6 में से एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया एंड मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब ये जो वर्टेक्स है, जैसे आपने बी है ना, तो ये सेम डायगोनल बी से भी काम करेगा, मतलब चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, डायगोनल दोनों के लिए सेम होगा, मतलब दो अलग अलग पॉइंट से डायगोनल सेम ड्रॉ किया गया है। अब कोई बच्चा बोले सर ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, बताता हूँ। तो आपने तो एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, अब बचे हुए कितने पॉइंट्स हैं, एक दो, फिर तीन, चार, चार पॉइंट है, ठीक है। आप बोलेंगे सर एक पॉइंट यहां पर भी बच गया, ठीक है, एक पॉइंट यहां, बचे हुए 5 में से एक पॉइंट आप पकड़ लो कि हमने फिक्स कर दिया, ये हमने पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब हमने क्या किया कि बचे हुए पॉइंट्स, अच्छा कोई बच्चा बोले बचे हुए पॉइंट्स कैसे सर काउंट कर रहे हो, तो एक काम करते हैं, पहले इसे रब कर देते हैं, इसे समझाने के लिए नीचे की तरफ लेते हैं, थोड़ा प्रॉपर डायगोनल ले लेते हैं। अब देखो, सपोज करो कि मैंने ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दिया, जिस डायगोनल का नाम मैंने रख दिया ए और बी, ठीक है। अब इसको कट करने के लिए मैं कोई भी एक लाइन खींचना चाहता हूँ, एक डायगोनल और खींचना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो डायगोनल ए से और बी से तो नहीं चालू होगा। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मेरे पास एक, दो, तीन और चार ऑप्शंस हैं। अब इन चार में से कहीं एक जगह से मैं एक डायगोनल खींच दूं, एक डायगोनल खींच दूं, तो डेफिनेटली वो इसको कट करेंगे, ठीक है। 4c1, 6c1 × 4c1, तो इसे भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इसे भी थोड़ा प्रॉपर वे में, ये लो, ये मैंने कर दिया ऐसे, तो ये हो गया, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये सी डी हो गया, तो ये कट कर दिया एक पॉइंट पे, बरोबर, एक पॉइंट पे कट कर दिया। अब अगर मैं उल्टा सोचूं कि जैसे मैंने ए पॉइंट लिया था, तो ए बी एक डायगोनल ड्रॉ किया और सी डी एक डायगोनल ड्रॉ किया, अगर मैं बी पॉइंट लूं, तो मान लो दूसरा ए बी, बी ए एक डायगोनल हो गया और सी डी एक डायगोनल हो गया, मतलब ये केस जो है वो दो दो बार काउंट हो गया। जब मैं ए से ले रहा हूं तो भी डायगोनल ए बी और सी डी काउंट हो रहे हैं, और जब मैं बी से ले रहा हूं तो भी डायगोनल बी ए और सी डी काउंट हो रहे हैं। फिर मैं डी से ले रहा हूं तो डी सी और ए बी काउंट हो रहा है, और मैं सी से ले रहा हूं तो भी सी डी और ए बी काउंट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एक पॉइंट को फिक्स करके अगर वहां से डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो अनदर पॉइंट के लिए भी वो सेम काम करेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, रिपीट कर रहा है ना केस। अब एक बच्चा बोले कि कैसे रिपीट कर रहा है, तो
इसका आंसर देने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। हाँ, सो मैंने कहा कि इसका आंसर मैं तुम्हें ऐसे देता हूँ। मैंने तो कहा कि अगर मैंने ए वाला एक पॉइंट लिया, छह में से कोई भी एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, से ए ले लिया, अब वहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं तो ए बी। ठीक है, मान लो कि उसी छह में से एक पॉइंट ए की बजाय बी में ले लेता, तो वहां से डायगोनल आता बी ए। तो मतलब ये जो सेम डायगोनल है वो ए से भी काउंट हो रहा है, बी से भी काउंट हो रहा है, तो ये दो दो बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल किया था। दैट इज व्हाट 24/2 इक्वल टू 12 implies that p of a equal to 12/36, so 1/3 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, so diagonal find the probability that diagonal intersect at the interior point of the hexagon। ये आंसर है, 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी है। होपफुली थोड़ा सा डाउट आया होगा, तो डाउट देखो बहुत सीधी सी बात है, मैंने देखो फिर मैं इसे समझा रहा हूँ। ये पहले कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो और वहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। तो आपने कहा कि सर मैंने पॉइंट से ये ई लिया और यहां से एक डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया ई बी। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपने जब ई बी बोला, ई बी या बी ई बोला, ठीक है, तो फिर ये दोनों तो सेम केस हो गए। तो ये जब आप 6C1 बोल रहे थे, 6C1 फिर दूसरा केस बताने जा रहे थे 4C1, 6C1 मतलब छह में से कोई भी एक पॉइंट लिया, ठीक है, फिर बचे हुए चार में से किसी एक पॉइंट से एक और डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ कि ये केस कितनी बार काउंट हो रहा था, कितनी बार काउंट हो रहा था, तो ये केस कुल मिला के दो दो बार काउंट हो रहा था। जैसे तुमने कहा कि सर मैंने ई सिलेक्ट कर लिया, ई की बजाय किसने कहा सर मैंने बी सिलेक्ट कर लिया और मैंने डायगोनल बी ड्रॉ किया। तो चाहे ई बी बोलो चाहे बी बोलो, डायगोनल वही है, बी और सी डी का इंटरसेक्शन या ई बी और सी डी का इंटरसेक्शन, बात तो एक ही देगा, एक ही पॉइंट देगा। और उसको हम दो दो पॉइंट काउंट कर रहे थे, अगर हम नहीं ऐसे लेते तो कैसे होता, 6 × 4 24 पॉइंट हो जाता। और फिर भी किसी को डाउट आया तो फिर कट करवा के देख लो, ठीक है, कट करवा के देख लो, तुम्हें आंसर आएगा। बट फिलहाल के लिए तो ये लॉजिकल था कि भाई ईबी से या बीई से हम सेम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये केस 6C1 और इंटू 4C1 में दो दो बार काउंट हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। चलो ज्यादा टाइम लग गया। अब कहता है कि देयर आर 6 वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट अ रैंडम, सॉरी 3 ऑफ 6 वर्टाइसेस, 3 ऑफ 6। तो सैंपल स्पेस में हमने छह में से कोई भी तीन वर्टेक्स ले लिया, दैट इज व्हाट 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये तो कट गया, इससे आ गया 20। फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाई दीज वर्टाइसेस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो तब बनेगा ना, चलो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। एक ये ऐसे हो गया बरोबर, ये ऐसे हो गया, तो तुम्हें एक चीज मालूम है कि रेगुलर हेक्सागन के हर एक एंगल 120 डिग्री के बराबर होता है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 60 60 में डिवाइड हो जाएंगे। फिर दूसरी साइड ये ले लो, और अगर तुम इसको सर्कल ड्रॉ कर देते हो ना लेके, ये देखो ये दूसरी साइड हो गई, एंड से द थर्ड साइड इज दिस, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। कोई बच्चा बोले सर कैसे हुआ, देखो लॉजिकली भी है। अगर तुम एक ऐसे सर्कल आउटर सर्कल ड्रॉ कर दो, तो तुम्हें वो आर्क वाला, अगर ये 120 डिग्री है तो सेंटर में जो एक सेंटर पॉइंट दे दो यहाँ पे। अरे थोड़ी ज्योमेट्री करनी है यार, थोड़ी ज्योमेट्री करनी है, ये सेंटर ले लो, ये 120 डिग्री है तो सेंटर में 240 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब 240 डिग्री का बनेगा, उससे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करके देखोगे तो तुम्हें क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आएगा। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका ये बन गया, ये पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा अगर मैं इसका नाम रखूं ए बी सी, अब कोई बच्चा बोले सर ए बी सी, कोई बोले बी सी ए, कोई बोले सी ए बी,
तो ये तीनों ट्राइंगल एक ही है, तो इसको एक ही ट्राइंगल, नाम बदलने से ट्राइंगल नहीं बदलेगा, तो इसे एक ही ट्राइंगल लिया जाएगा। और अगर मैं दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, तो दूसरा वाला ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे जा रहा है। प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये सेकेंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, देख लो। ये सेकेंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इसके नाम तुम्हें देना है तो पी क्यू आर बोल दो, पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर, चाहे पी क्यू आर बोलो चाहे आर पी क्यू बोलो, ठीक है, चाहे क्यू आर पी बोलो, किसी भी तरीके से बोलो, नाम तो इक्विलेटरल ट्राइंगल और वही होगा। अब तुम कहोगे कि सर ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करो, सारे तो सिलेक्टेड ही है। तो यहाँ पे दो ही इक्विलेटरल ट्राइंगल आ ही रहे हैं, तो दो में से कोई भी एक इक्विलेटरल, कोई भी एक ट्राइंगल सिलेक्ट करो, इक्विलेटरल है। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2/20, तो 1/10 की प्रोबेबिलिटी आएगी। 1/10 की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो श्योर तुम्हें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, कोई बच्चा बोले सर प्रूफ करो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थोड़ी ज्योमेट्री है बेटा, 2 फैक्टोरियल, तो 45 आ जाएगा। अब एक एक करके, बोथ आर रेड, तो बोथ आर रेड मतलब रेड में हाथ डालो, 4c2/10c2। अब आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे सिंप्लीफाई कर देना। पी ऑफ बी, बोथ आर ब्लैक, ब्लैक में डालो, 6c2/10c2 लिख दो। थर्ड क्वेश्चन का, वन इज रेड एंड अनदर वन इज ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक निकालो, पी ऑफ सी, तो 4 में से एक रेड निकाला एंड 6 में से एक ब्लैक निकाल लिया, बाई 10c2 हो गया। एंड नंबर फोर्थ पे आते हैं, पी ऑफ डी, आइदर बोथ आर रेड मतलब 4c2/10c2, या 4c2 प्लस आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक 6c2, आइदर और, बीच में और मतलब प्लस हो जाता है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो देखो कितना डिफिकल्ट था ये, सिंपल ये कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, ठीक है। अगला, इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। चलो बताओ, चूजन रैंडमली 100 नंबर है, कोई भी तीन नंबर ले लो, 100c2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो तीनों के तीनों नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होंगे। इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अच्छा, कोई भी नंबर 2 एंड 3 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, दोनों का एलसीएम से डिविजिबल होगा। तो आपको एलिमेंट में 1 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 6 का टेबल लिख डालो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, 36, then 42, 48, 54, 60, 11 6 ja 66, 12 6 ja 72, 13 6 ja 78, 14 6 ja 84, 15 6 ja 90, 16 6 ja 96, 17 6 ja 102। अब इनमें से कोई भी तीन नंबर ले लो, बोल रहा है ना, थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द 100 नेचुरल नंबर, तो आपको तीन नंबर, तो तीनों के तीनों नंबर ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अच्छा, किसी ने बोला होता कि सर मैंने एक 2 ले लिया, एक 6 ले लिया और एक 9 ले लिया, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से एंड 3 से, दोनों से, ये 3 से डिविजिबल नहीं है ना, 3 से नहीं है, और ये 3 से है लेकिन 2 से नहीं है, तो इसलिए मैंने जो नंबर लिया ना, वो ऐसा नंबर लिया जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो वो नंबर मुझे पता चला कि 2 और 3 का एलसीएम वाले जो नंबर है ना, यानी कि 6 के मल्टीपल, वही डिविजिबल है। इनमें से कोई भी तीन नंबर निकाल लो, तो टोटल मेरे पास 16 नंबर है, कोई भी तीन नंबर निकाला तो डिविजिबल हो जाएंगे। तो पी ऑफ ए इज नथिंग बट एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, 100c3, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया कि कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। अच्छा, थोड़े से के लिए जो बच्चा ऐसा देख रहा है जिसे वेवी कर्व नहीं आता है, उसे मैं बता दूं कि वेवी कर्व प्लॉट कैसे करते हैं। सिंपल वाला वेवी कर्व बता रहा हूँ, जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, या x प्लस सी, ऐसा कुछ है, लेस देन इक्वल टू जीरो। मैंने हर एक नंबर को लिया, x माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू बी,
x प्लस सी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरोज, जीरोज ऑफ फैक्टर, जीरोज ऑफ फैक्टर, और सारे लीनियर फैक्टर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसे इस फॉर्म में लाओ। फिर इनका प्लॉटिंग होता है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा जैसे माइनस सी है, फिर उससे बड़ा ए है, फिर उससे बड़ा बी है, बरोबर। अब जो पॉइंट न्यूमरेटर में है, तो अगर आप उस पॉइंट को लेते हो तो सॉरी डिनोमिनेटर में है, उस पॉइंट को लोगे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर के जीरो को हॉलो दिखाओ। हॉलो मतलब कि वी कैन नॉट टेक, अगर इक्वल टू का साइन है तो, और इक्वल टू नहीं है तो सब कुछ हॉलो आएगा। लेकिन अगर इक्वल टू का साइन है तो न्यूमरेटर के जीरोस को डार्क बताओ कि मतलब हम ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट डालेंगे तो आंसर जीरो आएगा, एंड जीरो इज वन ऑफ द सोल्यूशन। कभी भी राइट साइड में प्लस से चालू करो, प्रोवाइडेड सारे फैक्टर x माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता है a माइनस एक्स, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस सी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो हम इस फैक्टर को पलटते हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x प्लस सी करते, तो यानी कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी। फिर यहाँ प्लस से चालू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमने क्या देखा कि हमें नेगेटिव